Hello, my dear student. How are you? Welcome back to my YouTube channel Physics Arena, where you are studying class 12 physics. Okay. In previous class, we discussed about what is electric field and electric field due to a point charge. That clear? E is equal to F by Q naught, and we also discussed E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Is that clear? Okay, so now we are going to discuss some problems related to electric field, and this is a question from NCERT and also asked in CBSE 2018. Okay, so let us see what is given in this question and what we have to calculate. So now let's start. An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2.0 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb in figure 1. You can see. Okay. Now the direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and a proton falls through the same distance. You can see in figure 2. Compute the time of fall in each case. Are you able to understand this question? So यहाँ पे दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन जो है एक डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और इन इन इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, उसका मैग्नीट्यूड 2.0 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. So we can write E is equal to 2.0 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Okay. Now the direction of the field, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड. इसका मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, उल्टा. सर क्लियर? ओके. एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस. अब उसी सेम डिस्टेंस से, जितने डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन गिर रहा था उतने ही डिस्टेंस से एक प्रोटॉन गिर रहा है. इज दैट क्लियर? ओके. अब कंप्यूट, नाउ वी हैव टू कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस. दोनों केस में कितना टाइम लग रहा है इलेक्ट्रॉन को गिरने में और प्रोटॉन को गिरने में. इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टार्ट. So first of all, we will talk about first case, and the first case is case first is what is given. Since we know that here initial velocity of electron is 0. Initial velocity of electron is 0. Now इस इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड. सो एक इलेक्ट्रिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. डू यू नो दिस? इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज पार्टिकल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है. सिंस वी नो दैट यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज हम इंट्रोड्यूस कर दें, कहीं से ला के रख देते हैं, तो इस पे ये फोर्स लगाता है. और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, तो E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई दिस चार्ज. क्यू नॉट चार्ज is known as electric field of this charge. Do you know this? In previous class we already discussed about it. Okay, so we can write F is equal to Q naught E. Is that clear? Okay, here Q naught is charge on electron, so we can write F is equal to E into E. That means force on electron F is equal to E into E vertically downward. Is that clear? Okay. ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ लगेगा. अब जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मास मान लेते हैं me है, so we can write acceleration of electron AE is equal to force on electron upon mass of electron, Newton's second law,
force is equal to mass into acceleration. Do you know this law? So you will be say, okay sir, I know this law. So if you know this, so we can write F is equal to E into E upon ME, and this acceleration will be vertically downward. Is that clear? Okay, so we can write vertically downward here. Now since this electron is falling, नीचे गिर रहा है, so we can use equation of motion which is given by S is equal to ut plus half at square. Do you know this equation of motion? So we will generate a formula for t. So t square is equal to, we can write this value, this term will be 0. So t square is equal to 2s upon a. Is that clear? Okay, so we get t is equal to square root 2s upon a. Okay, so put the value of acceleration, which is t is equal to square root 2s, and the value of a is e by me. So here me upon e. Is that clear? Okay, so put the values of s, me, e and capital E. We will get t is equal to square root 2 into the value of s is this distance 1.5 into 10 to the power minus 2. Since this is centimeter in centimeter, so we have to change it in SI unit, which is meter. Okay sir, mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg upon charge on electron 1.6 into 10 to the power minus 19, and the value of E is 2.0 into 10 to the power 4. Is that clear? After solving this square root, we will get t is equal to 2.9 into 10 to the power minus 9 second. This is the time of fall for electron in first case. Okay, so note this. Okay, now we are going to discuss second case. सेकंड केस में क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. इन प्रीवियस केस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज vertically upward. In second case the direction of electric field is vertically downward, but in both cases the magnitude of electric field is unchanged, remains same in both cases. That clear? So in second case में क्या है, एक प्रोटॉन को क्या किया जा रहा है, नीचे गिराया जा रहा है. यू कैन सी सेकेंड केस. यहां पे क्या है, अब यहां पे आ गया है प्रोटॉन. अब ध्यान देना बच्चों, यहां पे होता ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में नीचे गिरेगा. यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा. और वो कितना होगा, तो F इज इक्वल टू ई. बोलो क्लियर? ओके, if it is clear, so let us start to solve, or we are going to find time of fall for this proton in this electric field. Is that clear? Okay, so now here initial velocity of proton is 0. Okay, now in the same way we can find as in first case. Okay, जैसा कि हमने फर्स्ट केस में फाइंड किया था वैसे ही सेम प्रोसेस से हम लोग सेकेंड केस में भी फाइंड कर सकते हैं. बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है
वो 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Is that clear? Okay, so here we can use the same formula, or first of all we find acceleration, downward acceleration AE, or we can say AP, proton. Okay, acceleration of proton vertically downward is equal to what? Force experienced by proton upon mass of proton. So we can write F is equal to what? E into E upon MP. Is that clear? Okay, so in previous case we find T square. T is equal to square root 2s me. So we will get right here MP upon what? E into E. सर क्लियर? फर्स्ट केस में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था टी के लिए 2SME अपॉन E इंटू ई. सेकेंड केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज होगा मास ऑफ प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ नहीं है, डिस्टेंस भी चेंज हुआ नहीं है. सो दोनों केस में फॉर्मूला यही लगेगा और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. 2 इंटू द वैल्यू ऑफ एस इज 1.5, so we will write 1.5 centimeter, so we will write here in meter 10 to the power minus 2, and the value of mass of proton. What is mass of proton? So 1.67 into 10 to the power minus 27 kg upon E. 1.6 into 10 to the power minus 19, and what the value of E is 2.0 into 10 to the power 4. Solve this square root. After solving this we will get 1.25 into 10 to the power minus 7 second. Is that clear? Okay. इन फर्स्ट केस यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा था, यानी कि टाइम ऑफ फॉल फॉर इलेक्ट्रॉन आया था कितना? वो आया था 2.9 into 10 to the power minus 9 second, and in second case time of fall for proton is 1.25 into 10 power minus 7 second. यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां पे, सिंस डिस्टेंस दोनों के लिए क्या था? सेम था. इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में क्या था? सेम था. फोर्स भी दोनों केस में क्या है? सेम. यानी कि एक्सेलरेशन दोनों केस में नहीं, सेम नहीं है. एक्सेलरेशन सेम नहीं है. अब ध्यान देना, यहाँ पे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था फ्री फॉल के बारे में, या ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा. फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग मासेस को अगर हम सेम हाइट पे नीचे गिराते हैं तो अर्थ के सरफेस पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, अगर केवल उस पे ग्रेविटी लग रही हो दोनों मासेस पे, यानी कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ना वर्क कर रहा हो. बट इन दिस केस इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम ऑफ फॉल अलग आया और प्रोटॉन के लिए टाइम ऑफ फॉल अलग आया. इन दोनों में टाइम ऑफ फॉल देखा जाए तो प्रोटॉन के लिए टाइम ऑफ फॉल क्या है? ज्यादा है, एज इट इज 10 to the power minus 7 second, and this is 10 to the power minus 9 second. So this value is small as compared to this value. यानी कि इलेक्ट्रॉन को नीचे गिरने में कम टाइम लगा और प्रोटॉन को नीचे गिरने में ज्यादा टाइम लगा. यानी कि मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि जो टाइम ऑफ फॉल है वो किस पे डिपेंड करा? दोनों पार्टिकल के मास पे डिपेंड करा. यानी कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वर्क नहीं कर रहा. Okay, so this is a new question in which an electric field is set up between the two plates of a capacitor as shown in figure. An electron enters the field symmetrically between the plates with a speed v naught. The length of each plate is L. Find the angle of deviation of the path. We have to find angle of deviation of the path of the electron as it comes out of the field. I hope the question is clear. क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज. कैपेसिटर क्या होता है ये हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही आप थोड़ा सा बस जान लो कि दो प्लेट्स होते हैं, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव.
और इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दैट क्लियर? ओके। अब इस रीजन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक इलेक्ट्रॉन भी नॉट वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है। एज यू नो दिस, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर करेगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ जाएगा। ओके, और पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसका जो ओरिजिनल पाथ है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि डेविएट हो जाएगा। और किस एंगल से डेविएट हुआ अपने ओरिजिनल पाथ से, वही एंगल ऑफ डेविएशन हमको क्या करना है? मेजर करना है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट। इन दिस क्वेश्चन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, यानी कि एक इसका जो वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जिसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, और यहाँ पे एक वेलोसिटी उसको आगे भी ले जा रहा है, जो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? दो टाइप का मोशन कर रहा है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से वो आगे जा रहा है और वर्टिकल से वो ऊपर जा रहा है। क्लियर? ओके, सो if we have to calculate this angle theta, that means angle of deviation, find the slope of this path. स्लोप फाइंड कर लो बच्चों। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा, ये अगर वैल्यू पता हो जाए, यानी कि वी वाई अगर हमको मिल जाए कहीं से किसी भी तरीके से, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, बस बात खत्म। अब वी वाई कैसे मिलेगा? तो वी वाई फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लग रहा है। तो आप बोलोगे हाँ सर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो लग रहा है, और वो कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू ई, एफ इज इक्वल टू ई, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। सो अब इलेक्ट्रॉन पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वो एक एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। एफ वाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? सो प्लीज से यस सर। Put the value of F, which is E into E upon ME. Is that clear? इस एक्सेलरेशन के साथ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। ओके, यानी कि मैं कहूं कि जो वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी है, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, वो कितना होगा? E E into T, U plus AT. U is zero, initial velocity is zero. So we can write Vy is equal to AET. So what is A? E upon ME into T. सर क्लियर? ये जो T है वो क्या है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? L। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? दैट मीन्स वी कैन राइट T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि V नॉट वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है? आगे जा रहा है, यानी कि इंटर करने में और आउट करने में जो टाइम लगा, T इज इक्वल टू L बाई V नॉट। इज दैट क्लियर? ओके, सो वी कैन राइट Vy इज इक्वल टू E L by ME V naught. The value of T is, put the value of T, L by V naught. Okay, now अगर मैं आपसे ये पूछूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा बच्चों? तो आप बोलोगे VO होगा, V नॉट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। दैट क्लियर? ओके, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन tan theta is equal to what? Vy upon Vx। क्या कर सकते हैं? Vy upon परपेंडिकुलर बाई बेस
is equal to tan theta as you study in class 10 trigonometry. Is that clear? Okay, so we will write here theta is equal to what? Tan inverse Vy upon Vx. Okay, so we can write theta is equal to tan inverse, what is the value of Vy? Sir, E by M V naught, and the value of Vx is V naught. So put the values of Vx, V naught square. Okay, is that clear? Okay, चलो बच्चों क्लियर है तो this is a new question in front of you which you can read carefully. A vertical electric field of magnitude 4.9 into 10⁵ Newton per coulomb just prevents a water droplet of a mass 0.1 gram from falling. The value of charge on the droplet will be. इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास दिया हुआ है 0.1 ग्राम, ठीक है। इस वाटर को प्रिवेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फॉलिंग, यानी कि नीचे गिरने से। अब मैं पूछूं आपसे कि ये नीचे क्यों गिरेगा, तो क्योंकि इसका वेट होगा mg। ओके, अब इस वेट को अगर किसी तरीके से हम बैलेंस कर दें तो ये वाटर ड्रॉपलेट वहीं पे रुका रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है कितना? 4.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर? ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाटर ड्रॉपलेट पे काम कब करेगा, तो आप बोलोगे जब इस पर चार्ज होगा। ओके, जब इस वाटर ड्रॉपलेट पे चार्ज होगा तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क करेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा कितना? Q इंटू ई। क्लियर? आप बोलोगे सर ओके, सो अगर इस वेट को जिसके वजह से वो नीचे गिर रहा है उसको अगर किसी तरीके से बैलेंस कर लिया जाए तो ये वाटर ड्रॉपलेट वहीं पे रुक जाएगा, और इसको बैलेंस कौन करेगा? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इन इक्विलिब्रियम वी कैन राइट QE इज इक्वल टू mg। क्लियर? यानी कि जो चार्ज इस पे होना चाहिए कितना होना चाहिए? mg अपॉन e के इक्वल। क्लियर? सो वैल्यू, पुट द वैल्यूज ऑफ m 0.1, this is in gram, so first of all we have to change it in SI unit, 10⁻³ and the value of g is what? 9.8, so we will write here 9.8 upon the value of e is this 4.9 into 10⁵. Is clear? 4.9 and 9.8 will be cancelled out by 2 times, so we can write 2 into 0.1 यानी कि 0.2 into 10⁻³ and this will be -5. Is that clear? 10⁻ऊपर 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5. ओके, सो 0.2 into 10⁻³ -3 -5 -8. In standard form we can write 2 into 10⁻⁻9 Newton per coulomb. Option B is correct. Is that clear? तो ये रहे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी आपके सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा गया है और आपको पता है कि आजकल सीबीएसई भी अपना लेवल बढ़ा लिया है और वो आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन वो कराया, वो भी समझ आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से क्वेश्चन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्लियर? ओके।